ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣੀਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ PR ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਪਨੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, US, ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਕਿ PR, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਰਜੇਵੇਂ, ਕਦੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰਜੇਵੇਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ 19 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है सारी यूनिवर्सिटियाँ दे जी। हम ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और स्पेशली ग्रुप ऑफ 8 उनकी एक एलीट ग्रुप है जहाँ पे सारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये टॉप ऑफ द लाइन प्रोग्राम्स हैं, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड वाइड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं जी। हमने ऑस्ट्रेलिया हज़ारों में स्टूडेंट्स भेजे हैं इतने सालों में, और हमारी एक्सपर्टीज़ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये उससे हमारे को फ़ायदा ये होता है कि हमारी एक तो वीज़ा आउटकम और एक हमारी एप्लीकेशन आउटकम बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। और 1-to-1 होने की वजह से, यूनिवर्सिटी का हमारे से 1-to-1 डीलिंग की होने की वजह से हमारी एप्लीकेशन बहुत फास्ट ट्रैक हो जाती है। अच्छा, दस रहे सी मैनू भाटी साहब कि मेरे ख्याल तुहाडे 19-20 दफ्तर ने, स्पैशल तुसीं एक्सपर्ट हो ऑस्ट्रेलिया दे, और आप पुष्पिंदर जी UK ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਦੇ SVP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ SSVF ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈਗੀ? ये सारी कन्फ्यूजन है जी। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम बहुत सिंपल है, जैसे हमारे इंडिया में सिंपल है वैसे ही सिंपल है। 10+2+3 वाला सेम पैटर्न फॉलो करता है। ऑस्ट्रेलिया डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स डिग्री और रिसर्च तक लेवल तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर करता है जी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है। लोगों ने शायद, कई एजेंटों ने जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने उसको थोड़ा घुमा फिरा के एक स्टोरी बना दी है, जबकि हमारे हिसाब से बड़ा सिंपल है। जो बच्चा ईयर 12 12वीं में अच्छे नंबर लेके आता है या क्वालिफाई करता है, उसको 2 ऑप्शन मिल जाती हैं। वो डिप्लोमा के थ्रू जा सकता है या डायरेक्टली डिग्री जा सकता है। कई जगह अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री क्वालिफिकेशन को डायरेक्टली वो एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं मीट करता, तो वो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली उसको डिप्लोमा भी ऑफर कर देती है। डिप्लोमा का उनका बड़ा अच्छा पाथवे सिस्टम है। और इंडिया में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डिप्लोमा पढ़ रहा हूँ, इवेंचुअली वो डिग्री ही पढ़ेगा जी। पर उसको हम एक एंट्री लेके चलते हैं कि कहीं 2-3% या 4-5% की कहीं ना कहीं बच्चों के पास कमी हो जाती है, तो वो सीधा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री चले जाते हैं। उसको कई बार D2D भी हम लोग बोलते हैं।
एंड इट्स अ वेरी गुड सिस्टम बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको डिग्री ही मिलती है, आपके हाथ में डिप्लोमा तो आता है पर जो डिग्री आप फिनिश करते हो उसी की आपको क्वालिफिकेशन मिलती है। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਨੇ, +2 ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਹੀ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਫਰਵਰੀ ਔਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿੰਗ ਫਰਾਈਡੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਬੈਠਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਦफ़ा मेरे ख्याल ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ एड्डे ਵੱਡੇ लेवल पे लेके आ रहे हो। हाँ जी, सो ये जैसे हमने पहले बताया, आपको पता भी, हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 12 से 14 यूनिवर्सिटी के टेबल लगेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स वहाँ बैठेंगे। और इस फेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ऑन द स्पॉट अपनी एप्लीकेशन को असेस करा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और वहीं आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और हमने बिकॉज हमारा फेयर चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ ने भी कहीं ना कहीं हमें एश्योरेंस दी है कि हम फास्ट ट्रैक करके एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। अभी भी मार्च के लिए टाइम है, अगर स्टूडेंट्स जाना चाहें तो मार्च के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास इस फेयर पे आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट इमीडिएटली सबमिट करते हैं, तो हम ऑफर लेटर विदिन 48 आवर्स टू 1 हफ्ते तक भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का जो अलाउ करती हैं उनको हम ऑफर लेटर भी ला के दें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਵਾਂ? बड़ी अच्छी बात करी आपने। एक पहले कहीं सुना था जी, पंजाब में बोर्ड लगाने से ऑफिशियल बन जाते हैं। मेरे ख्याल से बोर्ड लगाने से बाहर ऑफिशियल नहीं बनते हैं। यूनिवर्सिटी हर ऑफिशियल एजेंट को या रिप्रेजेंटेटिव को सर्टिफिकेट इशू करता है और उनकी डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे और अपने हर एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे भी डालता है। तो बच्चों को हमेशा चेक करना चाहिए कि आपके पास वो एग्रीमेंट है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है दिखाने के लिए। आप ये नोटिस करें, हमारे हर ऑफिस में हमारी एक बड़ी सी वॉल होगी जहाँ हमारे यूजली सारे सर्टिफिकेट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्ले किए जाते हैं, बच्चे को बताने के लिए भी हम इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रेप्स हैं। ਜੀ, तो ये फर्क पड़ जाता है। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ cic.gc.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ। जी। ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ? थोड़ा सा फ़र्क है। कनाडा का जो है वो एक गवर्नमेंट का रेगुलेटेड एसोसिएशन है, उसका मेंबर बनना पड़ता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में फ़िलहाल एजुकेशन में ये नहीं है, इमिग्रेशन में एक मारा के नाम से चलता है, उसको आप क्वालिफाई ਨਹੀਂ करते ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ, ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਲਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ हैं। यूनिवर्सिटी आपको ਦੀ कॉलेज ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ? हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा और वही अपने एजेंट को लिस्ट करते हैं वहाँ पे। ओके। और एक एसोसिएशन है एरी के नाम से, जहाँ ऑस्ट्रेलिया को फोकस, जितने भी ऑस्ट्रेलिया के एजेंट्स हैं वो उनके मेंबर हैं। और एरी को भी एक एडहॉकली बेसिस पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसको रिकगनाइज भी करती है। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੇਫ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਫ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਰਚ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕਸ ਨੇ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ +2, ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ +2 ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ?
वीज़ा के लिए ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है जी। केड़े हाँ, तो एक तो आपका एकेडमिक प्रोफाइल होता है, एक आपका वर्क प्रोफाइल और एक आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल। जहाँ स्टूडेंट हर तीनों प्रोफाइल को टिक मार्क कर देता है तो उसको एक हम पॉजिटिव प्रोफाइल कहते हैं, और वो पॉजिटिव प्रोफाइल का वीज़ा ऑलमोस्ट आता ही आता है। हमने कहीं नहीं देखा कि अगर स्टूडेंट पॉजिटिव है उसका वीज़ा ना आए। और कई जगह अगर आपको वीज़ा नहीं भी आता और आपको लगता है आपका पॉजिटिव प्रोफाइल है, आप उसको फिर से रीअप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है लोगों की, नहीं जी एक बार रिफ्यूज़ हो गया तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर एजेंट को जो एक्सपीरियंस्ड है या स्टूडेंट को लगता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आपका नहीं होना चाहिए, आपके प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है एकेडमिकली, इंग्लिश में, फाइनेंशियली भी, तो आपको हमेशा उसको एक रीअप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GT, ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਕਾਈਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ? जी, आप बड़ी चीज़ बोली आपने जी। GTE का पूरा है जी, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। ये एक नया सिस्टम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था और इसके अंडर ओवरऑल प्रोफाइलिंग स्टूडेंट की देखी जाती है। तो उसकी जेन्युइननेस देखी जाती है। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारी इंटेंशन और हमारा जो जेन्युइन इंटरेस्ट होता है वो स्टडी के थ्रू होना चाहिए जी। तो इसी को ओवरऑल एक प्रोफाइल में देखा जाता है। भी आपके 12th में या आपके ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स आए हैं, आप एकेडमिकली क्वालिफाई करते हो जिस कोर्स को आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हो उसको। काफ़ी बार देखा गया है बच्चे गलत कोर्स चूज कर लेते हैं जहाँ उसकी बैकग्राउंड नहीं मैच करती, तो वो भी कहीं ना कहीं GT में इफेक्ट आ जाता है। तो दैट इज़ व्हाट GT इज़ बेसिकली, उसी को हम लोग GT प्रोफाइल। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੰਡ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਕੋਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਊਮਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਸਭ ਕੋਲ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਣੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो फंड बड़ा सिंपल है जी। हर यूनिवर्सिटी का जो GT सिस्टम स्टार्ट हुआ है उसमें हर यूनिवर्सिटी ने अपना एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर दिया है। ये ज़्यादा एम्बेसी की तरफ से नहीं है, ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये ओनर्स जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन वो यूनिवर्सिटी पे डाल दी है कि जी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी हद तक आप चेक करेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी ने अपना सिस्टम बना लिया। कई यूनिवर्सिटीज़ बच्चे से 1 साल के फंड्स मांगती हैं, जिसमें कई बार वो रीसेंट भी अलाउ कर देती हैं, कई यूनिवर्सिटी रीसेंट नहीं अलाउ करती। तो जहाँ स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो अपने एजेंट से या पहले चेक करे कि भाई इस यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है। आपने जैसे फाइनेंसर का बोला या डिटेल बोला, मुझे नहीं लगता कि इस करंट सिनारियो में ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस दिखाना चाहिए, और दिखाना भी पड़ता है। AL1 AL2 ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। काफ़ी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एक सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में रखती है। वो ये नहीं बोलती आपको जी हमें दिखाओ सारा लोन दिखाओ ये दिखाओ, पर वो स्टूडेंट से चाहती है कि जेन्युइनली उसके पास फंड्स होने चाहिए। और वो एक तरह से हम भी ऑफिशियल रेप है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी उसको चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं जी। एक बड़ा अच्छा सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में कि फंड्स आप अपने फर्स्ट फैमिली में कंबाइन करके दिखा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही अकाउंट में पूरे पैसे रखने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे का लोन लेना है। आप अपनी फर्स्ट फैमिली के पैसे को कंबाइन करके भी देख सकते हो। ये फादर के अकाउंट में 5 लाख की FD है, मदर में 3-4 लाख की FD है, आपने 10-12 का लोन ले लिया, तो आप इससे कॉम्बिनेशन करके भी फाइनेंशियल दिखाओगे तो वो भी चलता है, ਚੱਲ ਸਕਦਾ। बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ PR ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਡਾਊਟਫੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PR ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ SOL ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ PR ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫੋਰਸਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਵੇ, सक्सेस किमें हो सकता है, किमें वो अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकता है? जी, मैं इसको एक स्टार्ट पॉइंट लूँगा जी। गलत कोर्स अगर हम इंडिया में भी लेते हैं तो हमें यहाँ पे भी दिक्कत आती है। तो वो तो ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी एक फॉरेन कंट्री है। मेरा पर्सनल एडवाइस हर बच्चे को होगा, और हम हर बच्चे की काउंसलिंग में भी उसको बोलते हैं कि आप वही कोर्स लो जो आपका इंटरेस्ट है जी।
स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया में एक बेनिफिट और है कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, जब आप 2 ईयर की मिनिमम डिग्री कोर्स कर लेते हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 2 साल का स्टडी वर्क परमिट देता है। आप उस कंट्री में फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, 2 साल एक्स्ट्रा रह सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको PR चाहिए तो अपने पॉइंट्स के हिसाब से अप्लाई कर हर सकते एक को हैं। मिलेगी। हर स्टूडेंट जो मिनिमम 2 साल डिग्री कोर्स करता है उसको PSW एलिजिबल होता है, वो PSW अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा में तो नहीं। नहीं, डिप्लोमा में नहीं जी, डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो चाहे वो मास्टर्स डिग्री हो, 2 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए आपको, और ये डिफॉल्ट मिलता है। इसके लिए कोई धक्के नहीं खाने पड़ते, कहीं 10 जगह नहीं जाना पड़ता, ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत हर स्टूडेंट को मिल जाता है। हमारे बड़े स्टूडेंट्स को मिला है और वो बड़े खुश हैं, वहाँ जाके अपने कोर्स के बेनिफिट के हिसाब से जॉब भी लेते हैं। तो दूसरा PR, जैसे आपने कहा, मैं एडवाइस नहीं दे पाता, बट फिर भी PR पॉलिसी कब चेंज हो जाए, क्योंकि PR शॉर्टेज स्किल के ऊपर होती है। जैसे आपने कहा SOL लिस्ट है, आज एक लिस्ट है, 2 साल बाद वो लिस्ट चेंज हो सकती है। तो कई बार बच्चे ये गलती कर जाते हैं। 2006-7 सब तो ज्यादा डिमांड कुकरी दी सी। जी, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया। अब अकाउंटिंग में बड़े लोग जाते हैं, अकाउंटिंग में भी थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनकी शॉर्टेज स्किल मीट हो चुकी है। तो कितने साल आप उसको एक खोल के रखो। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ, फूड इंडस्ट्री और खास तौर पे माइनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ जी। टीचिंग में भी बहुत टीचिंग ਦੇ ਵਿੱਚ टीचिंग में भी बहुत जॉब्स है, प्राइमरी स्कूल टीचिंग में बहुत जॉब है, डे केयर सेंटर्स में बड़ी जॉब्स है, पर कहीं ना कहीं बच्चे वो कोर्स नहीं लेते, जब उनकी बैकग्राउंड होती है तब भी नहीं लेते, तो गलत एडवाइस मिल जाती है। तो हम हमेशा, हमारा हर काउंसलर हमेशा स्टूडेंट्स को बताता है कि आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से परफेक्ट कोर्स आपको कौन सा लेना चाहिए, क्या मैच होता है, ताकि ये आपको वीज़ा में दिक्कत ना आए, ताकि आपके फ्यूचर में दिक्कत ना ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੰਬਰਸ ਨੇ, ਵੈਲਡਰ ਨੇ, कारपेंटर ने, पेंटर ने, ये लोग नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है जी, बड़ी शॉर्टेज है उसकी भी। पर इंडिया से, क्योंकि हम उसको एक ट्रेड स्किल को एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखते, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑप्ट आउट नहीं करते। जबकि अगर वो, और ये कोर्सेज यूजली डिप्लोमा लेवल पे होते हैं, तो फिर वही बात है कि मैं डिप्लोमा पढ़ूँ कि जी मैं डिग्री पढ़ूँ। पर अगर मेरे पास कोई ना कोई बैकग्राउंड है और मैं वो, जैसे प्लम्बिंग का आपने बोला, टेक्नीशियन का बोला, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बोला, इनकी भी बहुत रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। तो अगर बच्चे चूज करना चाहें तो ये भी कोर्स कर सकते हैं जी। जिस तरह पैक एशिया ने फ्राइडे लुधियाना 1 फरवरी ਨੂੰ और सैटरडे 2 तारीख ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ +2 BA ਮਾਸਟਰਸ ITI ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲ ਸਪੌਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਸਪੌਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਸਪੌਸ ਕੇਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੌਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਸਪੌਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ऑस्ट्रेलिया स्पाउस को बड़ा एक्सेप्ट करता है। आई थिंक ये पहली ऐसी कंट्री है जो स्पाउस को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। और अगर आपने देखा भी होगा, जितना स्टूडेंट को वीज़ा ड्यूरेशन मिलती है, स्पाउस को वही सेम ड्यूरेशन मिलती है। वो साथ जा सकता है, साथ वीज़ा मिलता है। अगर आपके पास बच्चे, छोटे बच्चे साथ में, वो भी जा सकते हैं, उनको वीज़ा मिलता है। और स्पाउस को तो ऑस्ट्रेलिया में फुल टाइम वर्क परमिट राइट भी मिलता है। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं देखा। जहाँ तक आपने कहा थोड़ा सा गलत हुआ है, यस, ये कहीं ना कहीं जिन जो नॉलेजेबल नहीं है या जिनके पास डायरेक्ट टाई अप नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को मोल्ड कर देते हैं। बट हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बड़े स्टूडेंट्स हैं जो विद स्पाउस जाते हैं, उनके वीज़ा लगते हैं, सारा कुछ होता है। सिर्फ एक स्पॉन्सर नाल जावे या स्पॉस 6 महीने बाद या साल बाद अप्लाई करे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है स्पॉस लिए। ये पर्सनल क्वेश्चन है, ये पर्सनल डिसीजन है, साथ भी जा सकता है, बाद में भी जा सकता है। चांस बेस्ट की है, ऑप्शन बेस्ट की है, नाल वीज़ा ज़्यादा चांस है, बाद दे ज़्यादा चांस? दोनों में वीज़ा चांस है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब गलत चीज़ें घुमाई हुई है जी। आप हस्बैंड को यहाँ छोड़ दो और वीज़ा बाद में ले लो। जब आपकी शादी लीगली हुई है, सब कुछ है, वाइफ हस्बैंड दोनों इकट्ठे हैं, सारा कुछ है, तो पहले क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? नहीं जाना है, वो आपकी फैमिली कमिटमेंट हो सकती है। रीसेंट मैरिजेस वाले भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी जेन्युइन शादी है, मैं क्यों ना जाऊँ? मैं क्यों कहा जाता है कि साल पुरानी मैरिज हो? ये यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट है, कंसल्टेंट्स दी है कि एम्बेसी दी है? जी, आई डोंट थिंक ये एम्बेसी की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। ये यूनिवर्सिटीज़ की, कई यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस शायद ठीक नहीं रहा स्टूडेंट्स के साथ, जो कई गलत में स्पाउस चले, जैसे आप मैरिज नहीं होती, लीगली नहीं होती, वहाँ जाके पता चलता है जी नहीं है।
एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपना रूल बना लिया है कि नहीं जी हमें मिनिमम 1 साल या 2 साल की शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो जस्टिफाई करता है रीज़न कि भाई आपकी शादी है, जेन्युइन है। बट मुझे लगता नहीं कि मेजॉरिटी ऐसा फॉलो करते हैं। अगर आपकी जेन्युइन शादी है, सब कुछ है, तो आप दोनों पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਲਈ? सक्सेस का सबसे पहला तो आपका कोर्स चॉइस होना चाहिए जी। अगर आप उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पे कोर्स आपकी चॉइस का है, तो आप सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन या एडलेड मत देखो, आप अपना कोर्स देख के चलो। ओके। ऑस्ट्रेलिया बहुत डेवलप्ड कंट्री है और हर सिटी अच्छी खासी बड़ी सिटी है। यूजुअल ट्रेंड मेलबर्न और सिडनी में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी के नंबर ज़्यादा हैं। तो टिपिकली हर बच्चा इन्हीं दोनों बड़ी सिटीज़ में जाना चाहता है। जैसे दिल्ली, बॉम्बे हमारे यहाँ बड़ी सिटीज़ हैं, एक कॉमन परसेप्शन है। कनाडा में आप टोरंटो है, वैंकूवर है। उसके अलावा एडलेड बड़ी अच्छी सिटी है जाने के लिए, पर्थ बहुत अच्छी सिटी है जाने के लिए, काफ़ी बड़ी सिटी है पर्थ, माइनिंग का बहुत वहाँ पे बिजनेस है, बहुत अच्छी इस्टेब्लिश बहुत बड़ी सिटी है, बड़ी जॉब्स हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी बच्चों को मिलती हैं जी। तो पहली चीज़ तो कोर्स की आपकी अपनी प्रेफरेंस होनी चाहिए, वहीं जाओ। और सिटी अगेन पर्सनल चॉइस, जहाँ कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, तो थोड़ा सेटल होने में आसानी हो जाती है, तो हम वैसे सजेस्ट करते हैं। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਐਲੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ 8-8 ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਲੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ? एलिकॉस या एली बेसिकली एक इंग्लिश एनहांसमेंट प्रोग्राम है कि भाई अगर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है या मेरी आइल्स में या पीटी में मेरा स्कोर कम आ गया, थोड़ा कम आ गया, जो मेरी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट से है, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको एली या एलिकॉस का एक 10 हफ्ते या 14 हफ्ते या 15 हफ्ते का आपको एक कोर्स दे देते हैं। मेन कोर्स तो पहला, मेन कोर्स तो पहला। सो बेसिकली पहले आप अपना एलिकॉस या एली कंप्लीट करते हैं। जब आप उसको क्लियर कर देते हैं तब आप अपना डिप्लोमा या डिग्री आगे स्टार्ट करते हैं। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई थिंक ये हम सजेस्ट करते हैं भी आप इंडिया में एलिकॉस अपना आइल्स कर लो तो आपके लिए आसानी रहती है, आप सीधा अपनी डिग्री स्टार्ट करते पर जे बच्चा कोई लेके जावे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली इंग्लिश जैसे आपने यहाँ पे आइल्स के लिए ट्रेनिंग करी है, बड़ा सिमिलर ट्रेनिंग वही है। आप ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, यहाँ पे इंडियन एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, और कोर्स वही है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। आपके वही चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी एनहांसमेंट कर रहे हैं कि ताकि आप अपनी डिग्री को ठीक से पढ़ पाओ। पुष्पिंदर जी, ਅੱਜ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ? फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का सारा घूम फिर के GT पे आता है जी, प्रोफाइलिंग पे आता है। जो काफ़ी एजेंट इनको एक्सपीरियंस नहीं है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तभी वो कई जगह डॉक्यूमेंट ठीक नहीं लगाते, प्रोफाइलिंग चेक ठीक नहीं करते, बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड नहीं करते। ओवरऑल अगर स्टूडेंट की ओवरऑल प्रोफाइलिंग ठीक है तो मुझे नहीं लगता उसको वीज़ा में कोई भी दिक्कत आएगी जी। सो ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ? बिल्कुल चांस बनता है जी। हमारे पास काफ़ी केस आते हैं जो कई बार रिफ्यूज़ होते हैं, हम उनकी पूरी बैकग्राउंड चेक करते हैं भी क्या रीज़न हो सकता है। बात वहीं आती है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं होता है एजेंट के पास, या जो फाइल वीज़ा फाइल हो या एप्लीकेशन फाइल हो ठीक से लगाई नहीं जाती। तो हमारी ऑब्वियसली 20 साल का तजुर्बा है, काफ़ी हज़ारों में बच्चे हमने भेजे हैं, हम वो कहीं ना कहीं पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और काफ़ी सक्सेस हुआ उसके बाद भी। कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि एक बार रिफ्यूज़ हुआ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बट हमारे बहुत सक्सेसफुल केसेस भी निकले। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 19-20 ਆਫਿਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਐਵੇਂ 5-7 ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? 1 और 2 13 से 14 यूनिवर्सिटीज़ के डेस्क वहाँ पे लगेंगे, 13-14 और हमारे भी एक्सपर्ट्स होंगे वहाँ पे और यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट्स भी होंगे।
तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ये सेमिनार थोड़ा डिफरेंट है जी नॉर्मल एक एजुकेशन फेयर से। इस सेमिनार में हम इनकरेज कर रहे हैं हर स्टूडेंट को कि अपने डॉक्यूमेंट, अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अपने वर्क एक्सपीरियंस लेटर, सारे अपने आइल्स की मार्कशीट सब साथ लेके आएँ, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट उसकी असेसमेंट करके इमीडिएट अप्लाई भी कर सकते हैं जी। जैसे मैंने कहा कि हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से यूनिवर्सिटी से, तो हम आपकी एप्लीकेशन इन इवेंट्स में स्पेशली फास्ट ट्रैक भी कर रहे हैं और आपको एप्लीकेशन फ़ी बेनिफिट भी है। तो यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम्शन है, बच्चों को फीस पे करनी नहीं एप्लीकेशन की और एकदम से फास्ट ट्रैक हो जाएगा। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੈਲਕਮ। ਟੈਕ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।